Hi, my beautiful soul family. I'm back again with another video. I hope you are doing great. मैं सबका स्वागत करती हूँ. मैं आ गई हूँ आपका another टॉपिक लेके. ये टॉपिक काफ़ी हद तक बहुत लोग मुझे मेरे फर्स्ट चैनल एंजेलिक रीडर जहाँ पर मैं डेली लाइव आती हूँ यहाँ पर आके पूछते हैं. वो है स्टूडेंट्स का कि वो गवर्नमेंट जॉब क्लियर कर पाएंगे, कोई आपकी जॉब इंटरव्यू क्लियर हो पाएगी, कोई आपकी एडमिशन हो पाएगी, कोई भी आपका काम जहाँ पर सिलेक्शन आप चाह रहे हो, इंटरव्यू क्लियर हो, कोई एडमिशन हो जाए, कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, कोई इंटरव्यू क्लियर हो जाए, जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स या अपने करियर को लेकर जानना चाह रहे हैं, सो ये वीडियो आपके लिए है. सो इफ़ यू आर हेयर जॉइनिंग माई वीडियो, I welcome you all. So please cooperate. I will be speaking in both languages, English and Hindi. So if you are students or you're looking for some information regarding your career or job, let's suppose if you guys want to know, will you clear any specific interview of your job, will you get selected in some job or career, will you get admission in specific college, university, will you clear some competitive exam, will you clear some specific government job, government exam, whatever you're looking for. So this video is for students as well as those who are looking for career. Will they be successful in whatever they are seeking? All right, so let's get started. I hope you're doing great. So God bless you. I will be showing you the cards and we will get into the reading right off the bat. Thank you. Plus make sure this is my first channel with the name Angelic Reader. I'm coming live every day over here. You can join in my everyday live session on my first channel Angelic Reader. The link is mentioned in the description box down below. You can join in over there to get your daily energy update, your guidance as well. So this video will be also revealing you the guidance regarding your situation. So आज की वीडियो आपको guidance भी देगी. So this is going to be a detailed reading. Sit back, relax, टेक अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड वी विल गेट स्टार्टेड. सो आराम से बैठ जाएं. ये वीडियो लंबी होने वाली है, आपको गाइडेंस भी मिलने वाली है. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. मे गॉड ब्लेस यू विद सक्सेस. सो वी हैव कार्ड नंबर 1, पीस. Take a closer look to the card. Don't rush. If you feel attracted to this card, you can choose it. Take your time. You can pause the video if you want. वो कार्ड चुने जहाँ पर आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्शन होती है. प्लीज़ डोंट यूज़ योर माइंड, डोंट यूज़ योर जजमेंट्स. पिक द कार्ड विच इज़ कॉलिंग यू द मोस्ट, वेयर यू आर फीलिंग इंट्यूटिवली ड्रॉन टू. सो कार्ड नंबर 2, को क्रिएट. वो कार्ड चुने जहाँ पर आपको अट्रैक्शन होती है. एक नज़र में जो कार्ड आपको अपनी तरफ खींचे वहीं आपकी एनर्जीज मैच करती हैं. दिमाग से सोचोगे फिर आंसर करेक्ट नहीं होगा. सीधा जो कार्ड एकदम से एक नज़र में आपको अट्रैक्ट करे बस उठा लो बिना कुछ सोचे, वहीं आपकी एनर्जीज मैच करेंगे और करेक्ट आंसर मिलेगा. सो प्लीज़ टेक योर टाइम. यू कैन पॉज द वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. गॉड ब्लेस यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी रिवीलिंग यू योर करंट एनर्जी, योर करंट सिचुएशन. इफ़ यू थिंक इट्स रेजोनेटिंग देन कीप वॉचिंग, एल्स यू कैन चूज़ अनदर कार्ड एंड चेक योर रीडिंग ओवर देयर एज वेल. सो अगर आपको एक कार्ड में लगे कि आपकी एनर्जीज मैच कर रही है, करंट सिचुएशन मैच कर रही है, फिर आपने सही कार्ड चुना है. अगर बाई चांस आपको लगे कि आपकी सिचुएशन यहाँ मैच नहीं कर रही है, फिर वो आपकी रीडिंग नहीं हो है, फिर आप दूसरा कार्ड चेक कर सकते हैं. शुरू करते हैं कार्ड नंबर 1 से. हाई कार्ड नंबर 1, दोज हू हैव चोजन दिस कार्ड, peace. So this is talking about a peaceful resolution or peace in the situation. Whatever is your situation, you need to find peace or there will be peace in the situation. So this is talking about staying silent or manifesting some peaceful result. So this is talking about birds represent communication, some messages. Okay, this is talking about freedom. 2 and 3, 23 number can be important for some of you. 2 and 3 comes out to be 5, which is talking about change, some change of mindset or change of something. So this can be literally flying also, change of location for some of you. Okay, so we can see clouds here. This can be some complications or cloudy vision or some energy like lack of vision or some situation like that. Okay, सो जिन्होंने ये कार्ड चुना है आपके लिए 23 नंबर या 5 नंबर इंपॉर्टेंट है. ये 5 नंबर चेंज को बोलता है. ये चेंज किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, कुछ कम्युनिकेशन को लेकर, मैसेजेस को लेकर, क्योंकि यहाँ पर बादल छाए हुए हैं. कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है अभी शांति की एनर्जी, जैसे कुछ समझ नहीं आए,
एक आप शांत रह के मैनिफेस्ट करो, क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये चैलेंजिंग सिचुएशन हो, आपको शांति रखनी है, शांत रहना है, अभी उसको मैनिफेस्ट करो, माइट बी कुछ इश्यूज़ हों। सो ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। सो इफ़ यू थिंक इट्स रेजोनेटिंग, वील फाइंड आउट। लेट्स सी व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी। अभी आपकी करंट सिचुएशन देखते हैं। सो एज पर दिस कार्ड, this is talking about literally some male person, someone who is responsible. This can be a father figure, this can be any person who is responsible for the situation, or this can be your energy, something related to money. Okay, this can be something related to someone, some person. Okay, this can be related to any person who is having the authority or something on those lines. ओके, सो ये एनर्जी है किसी पर्सन की, ये फादर फिगर हो सकते हैं, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, कोई पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है, या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, आपकी एनर्जी हो सकती है, कुछ पैसे को लेकर हो, फंड्स को लेकर कुछ हो, ठीक है, या फिर ये कोई भी पर्सन हो सकता है जिसको लेकर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको लेकर कोई मैसेज है। अब ये कार्ड बोलता है कोई इश्यूज़ हैं, जैसे आपकी एक एनर्जी रेजोनेट करिए, यहाँ पर भी क्लाउड्स हैं, यहाँ पर भी क्लाउड्स हैं। सो कुछ यहाँ पर क्लाउडी विजन है, लैक ऑफ क्लैरिटी है, या फिर कोई इश्यूज़ है, कोई अग्रेसिवनेस है, कोई गुस्सा है, या कोई क्लैरिटी नहीं है, या कुछ क्लैरिटी लेनी है, कुछ बहुत इम्पेशेंट एनर्जी है, फास्ट एनर्जी है। ओके, मान लो बहुत जल्दी कहीं जाना, या कोई इन्फॉर्मेशन मिलनी, कुछ जल्दबाजी में किया हो, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। ऑलराइट, सो कोई कॉन्फिडेंट हो सकता है, कोई बहुत एम्बिशियस हो सकता है, कि कोई एक्शन लेने की एनर्जी भी यहाँ पर हो सकती है। ओके, सो समथिंग रिलेटेड टू समवन वेरी कॉन्फिडेंट, एम्बिशियस, like very strong will, ready to take action, driven to succeed, so like very impatient and fast energy. Something related to clear communication or clarity, or clearing the vision somehow, some issues. Okay, so these are the energies. So if you think this is resonating, then this is your कार्ड, दिस इज़ योर पाइल, एल्स यू कैन चूज़ अनदर कार्ड। अगर अभी तक आपको लग रहा है ये आपकी एनर्जीज मैच कर रही है तो देखते जाए, नहीं तो आप दूसरा कार्ड भी चेक कर सकते हैं। स्टे ट्यून, आई एम एक्सप्लेनिंग मोर। सो योर करंट एनर्जीज आर प्रॉबली यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल, or you are flexible, or you need to be flexible. Okay, so now as I was shooting your video, all of a sudden I forgot to switch on the light, so I just switched on the light. So something related to definitely getting enlightened, awakened. Might be you were in dark energy and suddenly some enlightenment, so might be lack of clarity, enlightenment is required. सो आपकी रीडिंग में अचानक से मैंने लाइट ऑन की क्योंकि मुझे लग रहा था लाइट कम है, तो कुछ ऐसा आपकी रीडिंग में एनर्जी आई जैसे कुछ क्लियर ना हो, कुछ डार्क एनर्जी हो। सो कुछ चीज़ों पर रोशनी डालनी। अभी आपकी करंट एनर्जी, आपको फ्लेक्सिबल रहना है, किसी चीज़ को लेकर ज़िद नहीं करनी। कोई यहाँ पर स्टबन हो सकता है, सो इट्स बीइंग फ्लेक्सिबल, गोइंग विद द फ्लो, नॉट बीइंग स्टबन। ओके, अभी गो विद द फ्लो की एनर्जी है। अभी मतलब कुछ भी हो सकता है, देखते हैं आपके आगे दो रास्ते हों, इधर जाएं उधर जाएं, ये करें वो करें, क्या होगा देखते हैं। आप एडजस्ट कर रहे हो कि ठीक है जहाँ होगा जैसा होगा ठीक है। ओके, यहाँ पर कुछ कम्युनिटी मेंबर को लेकर हो सकता है। मान लो आपकी किसी के साथ डीलिंग, मीटिंग, कम्युनिकेशन, आपको किसी को विज़िट करना हो या कोई आपको विज़िट करे, ऑलराइट, या किया हो। सो समथिंग रिलेटेड टू सम कम्युनिटी मेंबर, probably someone, like something related to some person, you might be visiting someone or you have visited, so some visiting, meetings, something related to community member. Okay, that's an energy. Okay, this is your current situation and I'm strongly seeing some challenges and I'm seeing a closure of something. Okay, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ मुश्किलें हैं, पैसे को लेकर कुछ हो सकता है, पैसा बहुत ज़्यादा हो, अबंडेंस या क्वेश्चन ऑफ फंड्स, मनी। ओके, यहाँ पर पैसे को लेकर भी कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है। ऑलराइट, ओके, सो यहाँ पर कुछ क्लोज करने की एनर्जी सेंस हो रही है। ओके, 19 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 23, दिस कैन बी इंपॉर्टेंट नंबर्स फॉर यू।
आप शायद अभी कुछ मीटिंग्स कर रहे हो या अभी कोई ट्यूशन पढ़ रहे हो, कोई पढ़ाई कर रहे हो, या अभी कॉलेज कर रहे हो, या कोई इंटर्नशिप है, या जैसा भी मैच करे, या फिर कोई सोशल कम्युनिटी मेंबर्स या कोई आसपास ग्रुप ऑफ पीपल या किसी को भी लेकर कुछ इश्यूज हो सकते हैं। ओके, सो अभी तक अगर आपको लग रहा है ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट कर रही है, ये आपकी करंट सिचुएशन है, तो आपने सही कार्ड चुना है, नहीं तो आप दूसरा कार्ड चेक कर सकते हैं। तो सो फार इफ यू थिंक इट्स मैचिंग देन कीप वॉचिंग, एल्स यू कैन चूज अनदर कार्ड। Alright, now let's see, will you clear this exam? Will you clear your government job or any competitive exam? Or will you get selected in any specific interview? Or will you get that job? Or will you be selected in any admission in some college or university? Whatever you asking about. So आपका कोई भी सवाल हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, करियर को लेकर पूछ रहे हो, कोई इंटरव्यू, जॉब, एग्ज़ाम, जो भी आप पूछ रहे हो, क्या आपका ये क्लियर होगा? ओके, एडमिशन होगी, अगर आप किसी जगह में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जो भी आप सवाल पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रस्ट का मैसेज आ रहा है, यूनिवर्स आपको साइंस दे रही है, आपको ट्रस्ट करना है। इसको काफ़ी लोगों के लिए टाइम लगता दिख रहा है, अ ईयर फ्रॉम नाउ, हर एक का अपना टाइम है, बट विद इन अ ईयर और 1 year, सो एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन टाइमिंग्स, सो ट्रस्टिंग द टाइमिंग, बट रिकवरी, okay, so might be for some of you, you are going through some health issue, but once you recover from whatever losses you have gone through, so यहाँ पर कोई लॉस हो सकता है जिसकी रिकवरी हो। अगर हेल्थ इशू है तो पहले हेल्थ रिकवर कर लो। ओके, अबंडेंस, लाइक आई सेड, यहाँ पर मनी इश्यूज हो सकते हैं, समथिंग रिलेटेड टू फंड्स, मनी, हाई रेंज ऑफ मनी। ओके, यहाँ पर कुछ अबंडेंस को लेकर आ रहा है। Alright, listen to your intuition, angels are guiding you, trust your gut feeling, trust the signs given by universe। आपको अंदर से पता ही है क्या नहीं है। ओके, यूनिवर्स साइंस दे रहे हैं, रिमेन पॉजिटिव, यूनिवर्स आपको पॉजिटिव रहने को बोल रही है। ये कार्ड बोलता है कोई दो लोगों के बीच में मीटिंग, जैसे पहले भी हमारा ये सेम एनर्जी आई थी कि कोई दो लोगों के बीच में मीटिंग्स, कुछ लोगों के लिए पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, किसी से मीटिंग्स हो सकती हैं, बातचीत करनी। ओके, face to face meetings, interviews, whatever, exam, whatever. Okay, then we have is big happy changes, so यहाँ पर big happy changes आएंगे। हेल्पफुल पीपल माइट भी, आपको यहाँ पर किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत हो, और कोई ट्यूशन टीचर या कोई भी पर्सन हो सकता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, सो समबडी माइट बी हेल्पिंग यू, इट कैन बी एनी ग्रुप ऑफ पीपल, लाइक वी आर गेटिंग अगेन एंड अगेन द एनर्जी ऑफ सम community members, some people helping you through this situation, in this situation, or might be this is your teacher from whom you are studying, so take it as it resonates with your situation, जैसा आपके साथ रेजोनेट करे आप समझते जाएं। बी असर्टिव, हो सकता है आप यहाँ पर भटक रहे हो, जैसे मैंने कहा आप दो राह पर हो, आप एक स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, लेकिन आपको एक स्टैंड लेना है। सो if you are on crossroads, be assertive, what do you really want, focus on what is that you really want, stay focused, okay, and stay stable and be assertive, it's up to you। so ये situation बिल्कुल आपके ऊपर है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, या फिर ये किसी के ऊपर डिपेंड हो situation, so either this is up to you, you need to be assertive or it is up to someone, okay, the decision is up to someone specific, like I said, might be someone specific who is responsible for the entire situation। okay, so it's talking about reconsider, so second chances, it might not be possible in the first attempt, so you might be going through second attempt, if this is your second attempt then you might be finding success, but if this is your first attempt then this is talking about another chances, second chances, reconsidering something। so फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर पहली बार के लिए कुछ नहीं हो, कुछ दोबारा से कंसिडर करना, कुछ दोबारा से ट्राई करना, ऐसी एनर्जी है। ओके, जैसे मैंने कहा अभी के लिए नो आ रहा है। ओके, so it is, this is the message, perfect timing, might be it's a matter of the right time। ओके, सो पीसफुल रेजोल्यूशन, क्योंकि आपने ये पीस का कार्ड चुना है तो इट्स अ कॉन्फर्मेशन आपके लिए पीसफुल रेजोल्यूशन होगा। सो योर इश्यूज़ विल बी पीसफुली रिजॉल्व और यू हैव टू डू दैट। सो आपके जो भी इश्यूज़ हैं वो पीसफुली रिजॉल्व हो जाएंगे और आपको करने हैं। ओके, पीसफुली शांति से सिचुएशन का सोल्यूशन ढूंढना है। ओके, और सही समय की वेट करनी है और कुछ दोबारा से कंसिडर करना है, दोबारा से ट्राई करना। ओके, माइट बी एट राइट टाइम, एक सही समय पर, लेकिन सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, सो ये आपके लिए मैसेजेस हैं, दीज आर द मैसेजेस मेंट फॉर यू। लेट्स सी व्हाट एल्स। Okay, so like another confirmation, inner voice, your inner voice is already telling you, like we've got this card of your trusting your intuition,
दिस इज अगेन द कॉन्फर्मेशन, ट्रस्टिंग योर इनर वॉइस, ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। आपको अंदर से पता ही है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे भरोसा करना। ओके, देन द फूल, यहाँ पर कोई आप बेवकूफ़ियाँ कर रहे हो, आप फिर से घूम घुमा के वही सिचुएशन में आओ। ओके, सो ये मैसेज कहता है कि आप किसी की गाइडेंस लेके चलो। शायद आपने किसी की गाइडेंस नहीं ली, आपने ऐसे ही कुछ भी करते रहे हो जिसकी वजह से घूम घुमा के वही सिचुएशन आए। लेकिन आप कोई रिस्क लोगे यहाँ पर, बट रिस्क लेने से पहले पूरा जान लेना है। दिस इज़ अ गाइडेंस टू यू बिफोर टेकिंग एनी स्टेप फॉरवर्ड। मेक श्योर you take the guidance. Don't instantly jump into the situation, like we were getting this confirmation that you are getting impatient, that okay, let's do it, you are just rushing. So angels are asking, don't rush. This is the guidance to you. Don't rush, don't be a fool. Okay, don't rush, otherwise you will fall. So this is the energy. Might be you did something in rush, so be aware. This is the guidance to you. So know the consequences, take someone's guidance. Don't do just like that. कुछ भी ऐसे ही मत करो, किसी की गाइडेंस लेके चलना चाहिए। ओके, आपने कोई बेवकूफ़ियाँ की हो जल्दबाजी में, सो कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। तो दीज आर द एनर्जीज। लेट्स सी, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। यू नीड टू एक्सप्लोर सम पॉसिबिलिटीज़, और पॉसिबिलिटीज़ आपके आगे हो सकती हैं। मान लो आप कुछ अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ ट्राई करते जा रहे हो, या आपको करनी है, आप किसी चीज़ में थक जाओगे, एग्जॉशन। ओके, पोस्टपोनमेंट, डिलेज दिख रहे हैं। जितना आप जल्दबाजी कर रहे हो उतना ही डिले हो रहा है। सो ऑब्वियसली जिस चीज़ में आप जितनी जल्दी करने की कोशिश करते हो, जल्दबाजी में चीज़ें ख़राब होती है, उतना लेट होता है। ओके, सो डोंट रश, दिस माइट बी डिले, अ स्लो प्रोसेस। ओके, देन प्लेफुलनेस, you might be just taking it too casually, or you need to take it easy. So possibility, that's an energy. तो यहाँ तो आपने बहुत इसको हल्के में लिया, यहाँ तो आप सीरियस नहीं थे, यहाँ तो आपको लाइटली लेना, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, जैसा मैच करे। देन दिस इज़ टॉकिंग अबाउट थंडर बोल्ट, कोई गुस्से में आके आपने कुछ किया हो, या दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक सम सडन अवेकनिंग, सम सडन लॉस। ओके, somebody getting angry or some sudden loss. ये कोई गुस्से की एनर्जी है, अचानक से सब खराब होना। ओके, तो आपने कोई बेवकूफ़ियाँ की है, मान लो आपने कोई कम्युनिकेशन की हो या कुछ किया आपने बिना सोचे समझे, जिसकी वजह से आपको अचानक से नुकसान हुआ है, आपको बहुत गुस्सा है उस बात का, या आपने बहुत गुस्से की एनर्जी में जल्दबाजी में कुछ किया हो, अच्छे से क्लैरिटी ना ली हो, और ऐसा नहीं किया तो आगे जाके हो सकता है इस चीज़ को लेकर केयरफुल रहो। इफ़ यू हैव ऑलरेडी डन दिस, यू हैव गॉन थ्रू दिस, सो दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव एनर्जी। सो स्टे एट पीस। आई एम सीइंग योर एनर्जीज आर नॉट गुड। स्टे एट पीस। इफ़ यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस इशू, प्लीज़ solve the situation peacefully, because these are not good energies. And if you haven't gone through these, you might go through these, so be aware and take the steps carefully. Don't rush, otherwise you will fall, you will lose. So there is a chance of losing somehow because of these energies. This can be your energy or anyone. So अगर ये आपकी एनर्जीज अच्छी नहीं है, आप ऑलरेडी ये कर चुके हो, फिर तो आपको पता है ये नुकसान होने का चांस है, ये शायद एक बार में बात ना बने, जैसे कि आया कि दोबारा से कोशिश, दूसरा मौका, क्योंकि ये आपने कुछ ऐसी गलतियाँ करी हैं जिसकी वजह से कोई नुकसान, कोई गुस्सा, कोई जल्दबाजी में, कोई गुस्से में, या कोई अग्रेसिवली कुछ ऐसा है, तो आप एग्जॉशन की एनर्जी है। सो अगर ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, फिर तो आपको पता है ये डिलेज की एनर्जी है। अगर आपने नहीं किया तो आगे जाके कुछ ऐसा हो सकता है, इसको लेकर सावधान हो जाओ। ओके, समथिंग रिलेटेड टू इनोसेंस, माइट बी समबडी टेकिंग advantage of someone's innocence, or you might be too innocent, so take it as it resonates. Might be you are too young for that, something like that. Okay, but we have this card of the creator, so definitely stay positive. Like we got the card of let me see, so see, like we got this card of remain positive. It's a lot of yellow color, remain positive. So that's what the same energy, it's a confirmation, सेम एनर्जी है, पॉजिटिव रहो। ठीक है, आपको रोशनी होगी, जैसे मैंने कहा, आपको चीज़ों पर रोशनी पड़ेगी, यू विल गेट द क्लैरिटी। ओके, एंड द क्रिएटर, सो यू विल बी क्रिएटिंग व्हाट यू वांट बाय आफ्टर गेटिंग सम क्लैरिटी, आफ्टर गेटिंग सम एनलाइटनमेंट। सो कुछ चीज़ों पर जब रोशनी पड़ेगी तो फिर कोई पॉजिटिव चेंज आएगा। ओके, आप पॉजिटिव रहो, फिर आप कुछ क्रिएट कर पाओगे जो आपके लिए, जैसे मैंने कहा, ये आपके लिए फिर बिग हैप्पी चेंजेस लाएगा। यू विल बी क्रिएटिंग बिग हैप्पी चेंजेस। ओके, सो दिस एनलाइटनमेंट, पॉजिटिविटी, some clear communication, some beautiful change, you will be creating big happy changes. Okay,
Okay, stay light-hearted, be in a playful energy, don't stress out. If you have already done something wrong, it's okay, let it go. Everything happens for a good reason behind. And if it is not yet had happened, it might, so be aware. Okay, if you are getting too serious about things and rushing, or you are taking it too lightly, take it as it resonates. अगर ऑलरेडी गलती कर चुके हो, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, स्टे लाइट हार्टेड, खुश रहो, पॉजिटिव रहो. आप कुछ क्रिएट बहुत अच्छा करने वाले हो जिसमें बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे. और अगर आपने नहीं किया तो कुछ ऐसा हो सकता है, या तो आप बहुत सीरियस हो रहे हो तो हल्का फुल्का रहो, और अगर आपने बहुत लाइटली लिया है तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, लेकिन केयरफुल रह के करो. ओके, लेकिन आप डेफिनेटली जब कुछ चीज़ों पर आपको रोशनी पड़ेगी, कुछ आप नया क्रिएट करोगे, फिर आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है, फिर आप बिग हैप्पी चेंजेस मिलेंगे. और फिर फ्लावरिंग का कार्ड है, देन यू विल बी ब्लॉसमिंग, ग्रोइंग, देयर विल बी ग्रोथ एंड यू विल बी इन अ वेरी पॉजिटिव ऑरा. सो फाइनली इट्स गोइंग टू बी गुड. इट्स लाइक ऑल वेल दैट एंड्स वेल. सो अंत भला सो सब भला, फिर सिचुएशन इम्प्रूव होगी. अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड रिलैक्स. Move out of your comfortable zone, explore different possibilities, and relax and change your aura, and you will be, once you change your aura, you will be creating something great. Or if there is someone who can help you in creating what you want, let's suppose there is some person who is very successful who can help you in creating what you want, that can be yet another message. So keep manifesting with positive energies. That's the message I'm feeling. सो या फिर ये भी हो सकता है यहाँ पर कोई इंसान हो जिसके हाथ में कोई पावर हो जो आपको हेल्प कर सकता है आपकी ड्रीम क्रिएट करने में. सो आपको बोल रहे हैं कोई क्लैरिटी ले लो, कुछ नॉलेज ले लो, और या फिर पॉजिटिव रहो, अपनी एनर्जी चेंज करो, और आप जो चाहे क्रिएट कर पाओगे. माइट बी किसी इंसान के थ्रू जिसके हाथ में कोई पावर है, आप कोई और पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करें, अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखें और रिलैक्स करें, टेंशन मत लें अगर आप टेंशन ले रहे हो. ठीक है, खुश रहो, जो भी आ रहा है आप प्लेफुल एनर्जी में रहो और पॉजिटिव एनर्जी में रहो. आपकी लाइफ में अच्छा कोई चेंज आ रहा है, आप कुछ अच्छा क्रिएट करने वाले हो, बट अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखो. ठीक है, और टेंशन नहीं लेनी. मान लो आपने बहुत एक पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर की लेकिन आप थक गए हो. सो इफ़ यू हैव ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड सो मेनी पॉसिबिलिटीज़, यू आर एग्जॉस्टेड, सो रिलैक्स, टेक इट ईजी, डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, गिव इट सम टाइम, ट्रस्ट योर गट फीलिंग. ओके, all right. So might be you are getting fearful, some insecurities, fears, or might be you are living in some illusion, you went through some illusion. या फिर कोई यहाँ पर धोखे की एनर्जी भी आ रही है, कोई सीक्रेट्स हो, आपको कुछ पता नहीं है, पूरी क्लैरिटी लेकर स्टेप लेना. ओके, कोई धोखा भी हो सकता है, कोई धोखे में नहीं जीना, कोई आप इल्यूजन में हो, कोई धोखे में जी रहे हो, या कोई धोखा दे रहा हो, या कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी हैं आपको अच्छे से आपने पढ़ाई नहीं की या नॉलेज नहीं ली, या कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं. ओके, थोड़ा सा किसी की तबीयत ठीक ना हो, सो माइट बी समबडी गोइंग थ्रू सम हेल्थ इश्यूज. सो दीज आर द पॉसिबल आंसर्स, राइट? बट या यू विल बी एक्सप्लोरिंग डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़. टेक इट ईजी एंड बट यू विल बी फ्लावरिंग, यू विल बी ग्रोइंग. ओके, दैट्स एन एनर्जी. बट आपकी इतनी अच्छी एनर्जी होगी, आप ग्रो करोगे, ब्लॉसम करोगे. ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे. सो या दिस इज़ योर रीडिंग. नाउ लेट्स टेक द गाइडेंस फॉर यू गाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल, एंजल्स आस्किंग यू टू हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. सो ये आपका गाइडेंस है. अपने डर निकालो, जैसे मैंने पहले ही बोला, आप लोग काफ़ी डर रहे हो. सो लीव योर फियर्स, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. और and there is going to be some beautiful positive transformation. Release your fears and set free from what is not right for you. So जहाँ से भी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, टेंशन है, उसको फ्री करो, लेट इट गो, और अपनी एनर्जी पॉजिटिव करो. जैसे मैंने कहा, अपनी डर, जो भी आपकी अच्छी एनर्जीज नहीं है, उधर से फ्री होने की एनर्जी है, कोई पॉजिटिव चेंज की एनर्जी है. और अंधेरे से बाहर निकल के क्लैरिटी लेनी, कोई पॉजिटिव चेंज. यहाँ पर आई एम सीइंग ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रांगली. अपने सपनों पर भरोसा रखना, गिव अप नहीं करना, डोंट गिव अप, हैव फेथ. अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, कोई नई शुरुआत आ रही है, एक से फिर से नई शुरुआत करनी. और फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस. सो यहाँ पर कुछ, जैसे मैंने कहा, काफ़ी गुस्से की एनर्जी आ रही है. ओके, सो देर इज़ लॉट ऑफ ईगो रीच्ड एनर्जी. सो बी अवेयर, सो बी केयरफुल. All right, work, it's time to release the negativity. So it is time to release that. Like I said, there is some energy of releasing some negativity which is not working. So releasing that, it's time for positive change, a new start.
having faith. So full moon can be important for you. New moon, you will be starting something new phase, new something, and in the full moon you will be closing some chapter. So Aries season, Scorpio season can be important for you. ऑलराइट, सो आप फुल मून एरी सीजन या स्कॉर्पियो सीजन में कुछ क्लोजर करने वाले हो, कुछ चैप्टर क्लोज होने वाला है, जहाँ से भी नेगेटिविटी आ रही है कुछ ख़त्म हो रहा है, आप कुछ उससे फ्री होके कुछ नई शुरुआत कर रहे हो, और विश्वास रखो आपके सपने पूरे होंगे. इमोशंस आर गेटिंग रनिंग हाई, सो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करो, ज़्यादा इमोशनल होके एक्शन नहीं लेना. अगर आपने ऑलरेडी लिया है आप शांति से लो. तभी पीस का कार्ड आपने चुना. So if you are getting highly emotional, relax, calm down emotions. Like I already said, don't rush. Might be you are getting too aggressive, or you are just rushing. Okay, calm down. That's an energy. Okay, because I'm feeling there are some issues. So it's like setting free. Closing some phase or chapter and starting something new, having faith. Adjustments are required. Okay. सो एडजस्टमेंट्स करनी होंगी. स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्टेबल जोन. शायद आप अपने कंफर्टेबल जोन में ही बैठे रहे, आप उससे बाहर निकले ही नहीं, आप खुद ही कुछ ऐसी गलतियां करते रहे हो. सो अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करो. सो या नॉर्थ नोड कैन बी इंपॉर्टेंट. सरेंडर टू डिवाइन, जैसा चल रहा है भगवान की रज़ा में रहो. आप देखो आपकी रीडिंग में काफ़ी ब्लू कार्ड्स आ रहे हैं. सो अ लॉट ऑफ ब्लू कार्ड्स इन योर रीडिंग एंड डार्क ब्लैक. So I feel there are a lot of dark energy or lack of communication or miscommunication or some cloudy energy or something related to ego, pride, or some anger issues. आपके अंदर काफ़ी डार्क एनर्जीज दिख रही हैं. डर, इनसिक्योरिटी, गुस्सा, ईगो, इमोशंस हाई होने, बहुत नेगेटिव एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं. डार्क एनर्जी है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हैं. सो आपने कुछ ठीक से किया नहीं है, काफ़ी गलतियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से आपको बोला जा रहा है अब जैसा है उसको एक्सेप्ट करो. फुल मून बहुत स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप कोई क्लोजर देने वाले हो, और कुछ न्यू मून पे कुछ नया शुरू हो रहा है. ओके, एडजस्ट करो, जैसा आप एक्सेप्ट करो. द एंड ऑफ द टफ साइकिल. सो आपका कोई भी टफ साइकिल चल रहा था उसको ख़त्म आप करने वाले हो. डेफिनेटली आई एम स्ट्रॉन्ग, काफ़ी हद तक मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है. आपका कोई टफ साइकिल है वो ख़त्म हो जाएगा और कुछ ख़त्म हो जाएगा. और ये फुल मून पे आप डेफिनेटली कोई चैप्टर, कोई फेस क्लोजर करोगे, कुछ क्लोज हो जाएगा. उसके बाद न्यू मून पे आपका कोई न्यू फेस स्टार्ट होगा जो कि आपके लिए हैप्पीनेस लाएगा. तो डेफिनेटली एक बार में मुझे दिख रहा है आपकी कोई बात ना बने, आपको रीअटेम्प्ट करना पड़े, या ये कुछ और पॉसिबिलिटी हो सकती है, चाहे सेम में हो या कुछ और हो. सो इट माइट बी, बट इट्स अ वेरी क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग मैसेज. देयर इज सम tough cycle going on, and you will be ending that cycle, and it will be a closure probably in the full moon. It can be full moon in Aries, Scorpio or Capricorn season, and definitely you're closing some chapter. It's a closure, full moon, then creating something new. Probably new moon can be important. Okay, but you have to accept the reality. Adjustments are required. Put an end to tough cycle. It's closure of some tough time and starting something new, creating something new, having faith in your dreams, which is bringing some good energies. Okay, so nothing will come out of the situation, whatever you dark energy you are in. So जो भी यहाँ पर डार्क एनर्जीज है, आप कुछ अच्छी एनर्जीज में नहीं थे जिसकी वजह से आपको कुछ हासिल नहीं होगा. सो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है कि एक बार में आपका काम ना हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज अच्छे नहीं दिख रही हैं. सो माइट बी in the first attempt you might not be able to clear this, because nothing, you will not get anything out of it, because you're not in good energies. You might lose initially, I feel, but you might be closing something, a closure, but then starting something new. Look at these cards. After this black energy, absolutely opposite, a new sunrise. After this dark, after this night, this is a beautiful sunrise, a beautiful new day. सो कम्प्लीटली ऑपोजिट एनर्जी. सो आप बिल्कुल, आपकी एनर्जी चेंज होने वाली है. आप बिल्कुल अंधेरे से बिल्कुल रोशनी में आ रहे हो, एक नई सुबह, एक नई किरण, आप कुछ बहुत अच्छा क्रिएट करने वाले हो. सो दैट इज़ वाई आपके लिए आया है. सो दिस इज़ एब्सोल्युटली अ न्यू डे, अ न्यू सनराइज, getting out of that dark energy, putting an end to it, and that is why angels are asking you to stay positive, because it's like awakenings, enlightenments, clarity, and creating something new. Okay, might be you are too innocent to deal with the situation, or might be somebody took advantage of some innocence, or you are a fresher, you don't really have any knowledge. So these are the possible energies. Or might be somebody took advantage of someone's innocence, or someone was not aware of what it is. So something like that.
सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स। सो यहाँ फिर कोई लिटरली कोई बच्चा है, फ्रेशर है, आपको इसकी नॉलेज ही नहीं थी, आपने प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं लिया, आपने एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ा ही नहीं, या तो किसी ने किसी के इनोसेंस का एडवांटेज लिया। अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर धोखे की एनर्जी है कि या तो आप धोखे में जी रहे थे, आपसे धोखा हो गया, या किसी ने दे दिया, या अनजाने में हो गया, या जैसा मैच करे। बट अब एडजस्ट करो, जो है जाने दो, कुछ ऐसे हासिल नहीं होगा, उसको ख़त्म करो, कुछ नया स्टार्ट करो। लेकिन अब आपके आगे पॉजिटिव रहो, अपने सपनों पर भरोसा रखो, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आगे हैप्पी चेंजेस आएंगे। अपनी अगर आपकी एनर्जीज अच्छी नहीं, अपनी एनर्जीज़ को चेंज करो, थोड़ा घूमो फिरो, अपनी रिकवरी पे फोकस करो, चेंज योर एनर्जीज़। हेल्थ ठीक नहीं है तो रिकवरी करो, और ये ठीक हो जाएगा। और पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर आप करोगे, चाहे इसी में हो या कुछ नया हो। और अगर आप और पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करते रहे, जिसकी वजह से आपने बेवकूफ़ियाँ की और आप स्टेबल नहीं रहे, आप अनस्टेबल रहे, सो अब इट्स लाइक whether you were trying different opportunities and you were not stable, or you will be trying some new possibilities. So take it as it resonates according to the situation. You are tired now, but now angels are asking you to just take care of yourself, change your energy, leave it, give it a closure and move on, and stay happy, because the big happy changes are on the way to you. If you're not going through good health, okay, recover yourself, the losses will be recovered, take care of your health, and because big happy changes are on the way to you, okay. So you will be creating what you want, okay. By being in a positive energy, you can manifest what you want, you will be flowering. So it's like reconsidering, so it's absolutely up to you. Might be you were just being stubborn about yourself, like my way or the highway. आप अपनी मर्जी चला रहे थे, जैसा आपको ठीक लगता है वैसे ही आप करोगे, आप किसी की सुन नहीं रहे थे, आपने प्रॉपर, might be you didn't learn from some experienced teacher, आप अपनी मर्जियाँ करते रहे हो. So but angels are asking you to stay positive, okay. So this might be taking time, a year from the now. This might be a slow process, okay, but timings are different for all of you. So but यहाँ पर कोई rigidness दिख रही है, कोई ego, कोई stubbornness दिख रही है, okay. थोड़ा झुक कर चलो, stay grounded, stay rooted. So this is the message for you. I hope you like this video. मैंने आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी दे दी है और आपको गाइडेंस भी दे दी है. मेक श्योर आप इसको फॉलो ज़रूर करें. अब आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है कि कुछ चीज़ें हो चुकी हैं, उस हिसाब से आप आगे के लिए अवेयर रहो, प्रिपेयर्ड रहो, और अगर नहीं हुई तो ऐसा हो सकता है, ध्यान रखें ताकि आप इससे बच सकें. सो इफ़ यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस, देन यू नो what is the rest of the period according to this energy, according to this video, this information. And if you have not gone through that, it might be a possibility. You are, so be aware and take the steps accordingly. You have already got the signs. Make sure to give it a thumbs up, say thank you universe, and make sure to share your feedbacks in the comment section. So अपना प्यार भेजें और अपने comments section में मुझे ज़रूर बताएं आपके साथ कितना रेजोनेट किया. वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लाती रहूं. Hit the notification bell so that you can be notified about my upcoming videos. Subscribe and like, and let me know in the comment section how much it has resonated, or and I hope this guidance has also helped you. So मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये गाइडेंस ने भी हेल्प किया है. आप अपना फीडबैक्स ज़रूर शेयर करें और मुझे बताएं. मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में. गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू. हाई कार्ड नंबर 2. Those who have chosen this card, co-create. Let's get started with your reading. So first of all, number 4 can be significant for you. 4 and 0, 40. Okay. So 4 number is basically talking about stability and security. So something you want to create, might be with someone. Co-create usually talks about creating something with someone. Might be some two people who are in distance. Okay. One is like someone on a higher position and someone grounded, but something related to being wise, or it can be one is child, one is father, so something like that. Something related to overseas also. So I will be speaking in both languages, English and Hindi. Please cooperate. So मैं हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में बोलूँगी, आप कोऑपरेट करें. 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है. 40 नंबर, यहाँ पर कुछ दो लोगों की बात हो सकती है, कोई पार्टनरशिप या कोई कुछ क्रिएट करना, कोई डिस्टेंस हो. फॉर एग्जांपल आपको फॉरेन जाना है या कोई लोकेशन को लेकर कुछ हो. ओवरसीज हो सकता है. यहाँ पर कोई फादर चाइल्ड की एनर्जी, पेरेंट चाइल्ड की एनर्जी हो. किसी के अंदर ईगो, प्राइड भी हो सकता है. यहाँ कोई हायर अथॉरिटी को लेकर कुछ हो सकता है. यहाँ पर कुछ विजडम को लेकर भी हो सकता है. ओके. बच्चों की एनर्जी भी आ रही है.
लेट्स सी, यहाँ पर कुछ क्रिएट करने की एनर्जी आ रही है. ऑलराइट, सो लेट्स सी. 4 नंबर यूजुअली राहु का होता है, जो कि स्टेबिलिटी को बताता है, सिक्योरिटी को बताता है. नाउ लेट्स सी. फर्स्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग योर करंट सिचुएशन. इफ यू थिंक इट इज़ रेजोनेटिंग देन कीप वॉचिंग, एल्स यू कैन चूज अनदर पाइल एंड चेक आउट. ओके, अगर आपको लगे आपकी करंट सिचुएशन मैच करिए तो आपने सही कार्ड चुना है, नहीं तो आप पहला कार्ड चेक कर सकते हैं. ओके, सो आपकी करंट एनर्जी क्या है? अभी काफ़ी पेन में दिख रहे हो, काफ़ी टेंशन दिख रही है, काफ़ी स्ट्रेस दिख रहा है, शायद कुछ ख़त्म हो गया है या कोई बीमार है या कुछ भी हो सकता है. लिटरली कुछ एंडिंग्स की एनर्जी है, कोई मेंटल स्ट्रेस हो. ओके, ऑलराइट, सो this is the current energy. It can be any health issue or mental stress, some painful ending, some pain or some things not working out, a lot of overthinking, anxiety. Okay, some endings, some pains, that's an energy. Okay, all right, then we have your current energy is talking about something you cannot control. ओके, समथिंग विच इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल. आप गुस्से में आ रहे हो, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप काफ़ी तकलीफ़ में हो, गुस्से में आ रहे हो या पेन में हो, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं, आप वर्कआउट नहीं कर, कुछ आप वर्क नहीं कर पा रहे हो. यहाँ पर काफ़ी द ड्रीम, यहाँ पर काफ़ी ड्रीमी एनर्जी है, इमेजिनेशंस, ड्रीमी एनर्जी, काश की एनर्जी है. आप इमेजिनेशंस कर रहे हो, विजुलाइजेशंस कर रहे हो. ओके, इंटेंसिटी काफ़ी हाई है. ओके, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन है, कुछ भी हो सकता है, आपको मालूम है ये क्या है. ओके, सो आपकी ये करंट एनर्जीज दिख रही हैं. ऑलराइट, पास्ट लाइफ्स, कुछ पास्ट को लेकर हो सकता है. द माइजर, कोई पैसे का इशू हो, पैसे की कमी हो या लो एनर्जीज हैं, समथिंग रिलेटेड टू लैक ऑफ मनी और सम लो एनर्जी इन सम वे, द लैक ऑफ समथिंग, फीलिंग द लॉस ऑफ समथिंग. ओके, एंड letting go is a message. You need to let go or you are letting go. कुछ चीज़ें let go करने की एनर्जी है. ओके, पास्ट लाइफ्स को लेकर कुछ हो सकता है. यहाँ पर कोई पास्ट एनर्जीज कोई आपको वो आपके लिए ठीक ना हो, जैसा मैच करे. ऑलराइट, बट यहाँ पर न्यू विजन, कुछ नया नज़रिया, चीज़ों को देखने का नया नज़रिया, कुछ न्यू विजन. ओके, ऑलराइट, सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स. आई एम पुलिंग द कार्ड्स फॉर यू. टेक इट एज इट रेजोनेट्स विद योर सिचुएशन. सो आपके आगे कार्ड्स रख रही हूँ, आपको समझना है ये आपके साथ कैसे रेजोनेट करते हैं. मैं आपको एनर्जीज बता रही हूँ. ओके, कुछ रिबेल की एनर्जी है, कुछ चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, किसी ने कुछ मना कर दिया किसी को, कुछ ऐसा. ओके, बट देन यहाँ पर कोई न्यू एनर्जी है, सम न्यू विजन, लाइक दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन, समथिंग न्यू, न्यू विजन, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू स्टार्ट, न्यू पर्सपेक्टिव. ऑलराइट, सो दीज आर द एनर्जीज. टेक इट एज इट रेजोनेट्स. आई एम जस्ट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन. इट कैन बी एनीथिंग न्यू, कुछ भी नया हो सकता है, नया नज़रिया, कोई नया मौका, किसी ने कुछ मना कर दिया या कुछ चीज़ें वर्क नहीं हुई, जैसा मैच करे, कुछ किसी चीज़ की कमी दिख रही है, लॉस दिख रहा है, या कोई पास्ट एनर्जीज हो, पैसे की कमी हो या कुछ भी हो सकता है. ऑलराइट, पास में आपने कुछ चीज़ें ठीक नहीं की हो. ओके, सो एनीवेज, लेकिन हमारे पास, आपके पास इमेजिनेशन का कार्ड है. आपकी रीडिंग में काफ़ी इमेजिनेशन और ड्रीमी एनर्जी दिख रही है कि आप काफ़ी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहे हो, ड्रीमी एनर्जी में रहे हो, आप इमेजिनेशंस में बहुत रहे हो, आप प्रैक्टिकली नहीं चले हो. ठीक है, सो आई फील यू गाइज आर नॉट प्रैक्टिकली गोइंग, यू आर मोर ऑफ इन इमेजिनेटिव और विजुअलाइजिंग इमेजिनेशन एनर्जी. might be you are manifesting, but this is more of breathing in and breathing out. It's like take a breather, take a break, relax. Okay, सो मुझे यहाँ पर कुछ पेशेंस की एनर्जी सेंस हो रही है, वेटिंग एनर्जी. रिलैक्स करो, आपकी एनर्जीज अच्छी नहीं है, थोड़ी योगा, मेडिटेशन या एक ब्रेक टाइम है, ज़्यादा इमेजिनेशंस मत करो. या आप कुछ, आई डोंट नो ये कैसे रेजोनेट करता है आपको पता है, बट मिल्क एंड हनी, यहाँ पर अगर कोई आपका हेल्थ इशू है तो अपनी हेल्थ पे फोकस करो. मिल्क और हनी लिटरली आपको पीना है तो पी सकते हो. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सम हेल्थ इशू. बट दिस इज़ टॉकिंग अबाउट हीलिंग. This is basically talking about healing. See, look at the rainbow. After the storm, there is a rainbow. So 5 and 1 is 6. So 6 number is talking about success, loving energies, success. So blossoming energy might be. Now you know what it is. How does it resonate with you? आपकी सिचुएशन है, आपको बताइए कैसे रेजोनेट करती है. अगर हेल्थ इशू है तो एक ब्रेक लेना, हीलिंग पे फोकस करना, या फिर जो भी है आपको पता है. बट
भी थोड़ा सा ब्रेक लो, शांत रहो, इमेजिनेशंस में नहीं रहना, इंटेंसिटी बहुत हाई हो रही है, कुछ ऐसा है। ऑलराइट, गर्मी बहुत है, ठंडक की एनर्जी है। ऑलराइट, सो समथिंग टू मच इंटेंस, healing, it's like calm down, take a break. All right, so but definitely you will be finding success. Okay, so relax, success is on your cards and you will be finding some breakthrough. Okay, so you will be breaking through this dark energy, breaking through this obstacle, breaking through this whatever it is. Okay, so a breakthrough which is going to bring a success. So don't worry, your cards are very positive, whatever it is, चाहे कुछ भी आपकी एनर्जी हो, जो भी सिचुएशन हो, बट आप कोई ब्रेक थ्रू से जाने वाले हो। आप वो सारी टेंशन से बाहर निकल कर उसके थ्रू चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी और एकदम ये विनर एनर्जी है, आप जीत जाओगे। ओके, सक्सेस की एनर्जी है। ऑलराइट, सो वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स, ब्रेक थ्रू एंड सक्सेस। मैंने फिर से बोला ना 6 नंबर आपकी रीडिंग में आ रहा है और 11 नंबर कैन बी सिग्निफिकेंट। 6 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, नंबर 4 इज़ इंपॉर्टेंट। आई एम स्ट्रॉन्गली सीइंग 11 अगेन, 11 एनर्जी कमिंग थ्रू, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 10। ओके, so now number 4 is also very strong number 8, all right, number 2. So these are the possible numbers. Number 4 is very strong, number 11 is very strong, number 6 is very strong over here. Okay, let's see what else. Again a confirmation, a win-win outcome is forecast, so stay positive. So यहाँ पर डेफिनेटली आपकी विक्ट्री तो होगी, विन-विन आउटकम तो है ही है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे जो भी सिचुएशन है आपको समझना है। बाकी सारे कार्ड्स आपके सामने हैं। ऑलराइट, सो बैलेंस इज अ मैसेज, जस्टिस, फेयरनेस, that's an energy. Okay, so do what is right, take fair decisions, balance out the scales, be determined, stand up for what is right, you will be winning. That's an energy. All right, regardless of your situation. विक्ट्री के कार्ड तो 2 आगे, सक्सेस और विन आउटकम। वेरी गुड कार्ड्स, कंग्रेचुलेशंस, रिगार्डलेस ऑफ योर सिचुएशन। घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये सिचुएशन समझ नहीं आई आपके साथ कैसे मैच करती है, उसके बावजूद आप सक्सेस हासिल कर रहे हो। बस वो करो जो सही है, भटकना नहीं, अपने आप को संभालो, सिचुएशन को संभालो, एक स्टैंड रखो। ओके, बैलेंस की एनर्जी है, किसी चीज़ में एक्सेस में नहीं जाना, हर चीज़ को साथ लेके चलो। जैसे अगर कोई 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ों को अपनी अपनी जगह बैलेंस रखो। किसी चीज़ में भी बैलेंस की एनर्जी है, एक हेल्दी वे में कुछ चीज़ों को संभालना, एक्सेस में नहीं जाना, एक स्टैंड रखना। या फिर आपकी अगर तबीयत ठीक नहीं है, पहले तबीयत को संभालना, पहले तबीयत ठीक हो जाए। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ओके, और बट सक्सेस आपके आगे है। 2 कार्ड सक्सेस के कॉन्फर्मेशन है। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, अगर हेल्थ इशू है मेडिटेशन करो, टेक सम टाइम आउट टू कॉन्टम्पलेट, इंट्रोस्पेक्ट। सो थोड़ा समय की एनर्जी आ रही है। इट्स ऑल अबाउट पेशेंस, थोड़ा ब्रेक लो, पेशेंस लो, सोचो, विचार करो, इमोशंस को कंट्रोल करो, बैलेंस करो, किसी के पीछे भागना नहीं है। कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, रिलैक्स करो। ओके, किसी की तबीयत ठीक नहीं हो तो पानी ज़्यादा पियो, स्टे हाइड्रेटेड, बट योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। सो मेहनत करते जाओ, मेहनत का फल मिलेगा। because cards are success and victory is on your cards. So believe in yourself, you are good enough. Might be you're not believing in yourself. Okay, so खुद पर विश्वास रखें। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं रख रहे हो, expect powerful change. So after a dark period there is going to be a beam of light, boom, a major change, a powerful change. You can expect some powerful change. All right, so you need to be strong enough, gain your power back, be in positive energy, and yes, and you will be getting that beautiful major change. Be strong, you can make a change, you can expect a change. Okay, but work through your fears. So अपने डर निकालो, जहाँ से भी टेंशन है उसके थ्रू वर्कआउट करना है। यहाँ पर स्ट्रांगली आपके फेयर्स दिख रहे हैं। यू नीड टू वर्क थ्रू समथिंग, अगेन अ ब्रेक थ्रू। सी, गोइंग थ्रू, इट्स लाइक ब्रेक थ्रू, work through. So you need to go through something in order to fight it and come as a winner out of it. That's an energy. Okay, so कोई भी एनर्जी है उसके थ्रू आपको निकलना है, उसके थ्रू फेस करना ज़रूरी था। अगर आप उसको नहीं फेस करते, उसके थ्रू नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको लगता नहीं अच्छी हो रही थी, लेकिन उसके थ्रू जाना आपके लिए ज़रूरी था। अगर आप ना जाते
तो आपके अंदर वो शायद मेजर चेंज नहीं आता, आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनते, शायद आपके अंदर डर बहुत है, आप डरते रहे हो, आपने डर डर के काम खराब किया है। तो आपके लिए भगवान ने आपको जो सिचुएशन में डाला, शायद आपका डर निकालना ज़रूरी था, ताकि आप अपने डर के थ्रू वर्कआउट कर सकें, आप अपने डर से बाहर आके स्ट्रॉन्ग बन सकें। जब आपके अंदर वो जोश आएगा, गुस्सा आएगा, तभी आप उस चीज़ से बाहर निकलोगे। इट्स लाइक राइजिंग आउट ऑफ द एशेज एंड बिकमिंग अ फिनिक्स। भगवान को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना था, आप कमज़ोर थे, तो you had to go through this because universe wanted you to be strong enough. You had to go through this in order to fight through your fears, so that you can get out of it more stronger and a winner. So it's like winning the battle after this challenge, although you are facing this challenge, but winning your battle by going through this challenging phase. It's like you will be taking pride in saying, yes, I have won my battle. So that's an energy. So believe in yourself. I feel you guys don't believe in yourself. मुझे आप में से काफ़ी लोग लग रहे हैं जो डरते हैं, आप खुद पर विश्वास ही नहीं करते हो, आपको सेल्फ वर्थ इशू है, आपने खुद को संभाला ही नहीं ढंग से, आपने सिचुएशन को ठीक से नहीं संभाला, आपने सही डिसीजंस नहीं लिए, आपने खुद पर ही भरोसा नहीं किया, या तो आपने किसी पर भरोसा नहीं किया, या आपने कुछ गलत चीज़ों पर भरोसा किया। ठीक है, आपकी एनर्जीज काम डाउन नहीं थी, आप बहुत इंटेंस एनर्जी में थे। आपने मेडिटेशन करो, थोड़ी मेडिटेशन करो, अपनी काम डाउन एनर्जी करो, क्योंकि आपने जो भी किया काम एनर्जी से नहीं किया। आप जो भी सोच विचार आराम से शांति से करते तो चीज़ें बढ़िया हो सकती थी, लेकिन आपकी इंटेंसिटी बहुत हाई थी। आप काम डाउन होकर शांति से सोचो, विचार करो, मेहनत करो, आपकी मेहनत सफल होगी। सो योर हार्ड वर्क विल बी पेड आउट। You need to just cleanse your energies, release your fears, believe in yourself, that you're good enough. Might be you're not trusting someone, or you're not trusting yourself, or you trusted the wrong people. So balance yourself and do some meditation, work through your phase, believe in yourself, gain the power and work hard, and your hard work will be paid off. It's going to be paid off, and it's time to take action. So you are about to take some action. Aries season can be significant for you, so be strong, take action. You really need to take action by being strong. Might be you're not strong enough. That was whatever you went through, it was merely a lesson by universe to you. It was just a situation for you to go through, so that you learn your lesson, because you had to be strong enough to take action towards what is right. You had to go through what you were supposed to go through in order to be strong enough to do what you are supposed to do. Might be you were not doing the right thing. It's all about a matter of right time. Okay, might be you were buying a lot of time. Okay, so मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि भगवान ने आपके साथ जो भी हो रहा है ना, ये आपके लिए ज़रूरी था, आपको इससे जाना ही था, क्योंकि आप कमज़ोर थे। आप कुछ जो आपको करने की ज़रूरत है आप कर ही नहीं रहे थे। आप मेहनत बहुत कर रहे थे, लेकिन आप सही नहीं कुछ कर रहे थे, और आप कमज़ोर पड़ रहे थे। आपके डर, खुद पर विश्वास ना होना, या किसी चीज़ पे विश्वास ना करना, और आपने कुछ चीज़ों को ठीक से संभाला नहीं, कुछ डिसीजंस ठीक नहीं लिए, आपने आराम से शांति से सोचा नहीं, आप शांत नहीं हो, आपकी एनर्जीज बहुत हाई है। सो आपका नज़रिया शायद सही नहीं था, आप किसी चीज़ों को मना करते रहे, यू केप्ट रेजिस्टिंग समथिंग। सो आई फील दीज आर द एनर्जीज की आपको इस चीज़ से निकलना था। यूनिवर्स ने आपको एक लेसन सिखाना था, ताकि आप स्ट्रांग बने, आप खुद पर विश्वास करें, आप वो करें जो सही है, जो आपको करने की ज़रूरत है, तभी आपकी मेहनत सफल होगी। क्योंकि और वो तो होनी है, क्योंकि आपके लिए सक्सेस का कार्ड है, लेकिन आप सिर्फ मेहनत कर रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें आप सही नहीं कर रहे थे। हो सकता है आपने बहुत मेहनत किया है, माइट बी यू हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट माइट बी यू वर नॉट डूइंग समथिंग राइट, और माइट बी सम wrong energy was around you in some way. I don't know how does it resonate with you. Might be some of your past life karmas were chasing you, something related to past lives, which because of which you had to go through this. It was a part of your journey, so let it go, let it flow. Something related to loss of money or loss of something. Okay, all right. Might be you didn't treated someone properly, you mistreated someone, you didn't respect someone, or you were not treated properly, या तो आपने किसी को ठीक से ट्रीट नहीं किया, because justice card usually talks about fairness, equal exchange of energies, equal give and take, or might be something कर्मास को लेकर भी कुछ आ रहा है, क्योंकि एक बैलेंस नहीं था, आपने किसी को ठीक से ट्रीट नहीं किया, या आपको किसी ने ठीक ट्रीट नहीं किया, जैसा मैच करे, बट आपके लिए लेसन ज़रूरी था। But congratulations anyways, whatever you are going through, at the end of the day,
These are great cards to see. God is blessing you. Your hard work will be paid off. A win-win outcome is forecast. Do what is right for you and believe in yourself. You are good enough. Okay. So Virgo season, Libra season, Capricorn season can be significant for you. So you are closing some chapter. Full moon in Virgo, Libra, new moon in Capricorn. So these can be important seasons for you. ऑलराइट, सो फॉर डिफरेंट पीपल डिफरेंट टाइमिंग्स, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइमिंग है. कुछ लोगों के लिए वर्गो सीज़न, कुछ लोगों के लिए लिब्रा सीज़न, कुछ लोगों के लिए कैप्रिकॉन सीज़न. इट्स लाइक वर्गो इज़ यूजुअली अगस्त सितंबर के बीच में, लिब्रा सितंबर अक्टूबर के बीच में, कैप्रिकॉन दिसंबर जनवरी के बीच में. सो ये इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स हैं. ऑलराइट, सो कुछ आप चैप्टर क्लोज कर रहे हो, कोई क्लोजर हो रहा है, और कुछ न्यू बिगिनिंग है, अ मेजर टर्निंग पॉइंट, अ मेजर चेंज, a major divine intervention, boom, a major turning point. So although you are feeling frustrated that some things you cannot control, or might be you were too rigid, or some things beyond your control, something like that. Okay, so but you don't have to worry, just relax. Okay, might be you were in just imaginative world, being in your own imaginations, you were not being practical, you were just learning, memorizing but not practicing. So practical things are necessary. Okay, anyways, but angels asking you to let go now, whatever it is. So take it as it resonates with your situation. I'm sure you're getting your clarity, and angels have given you beautiful cards and guidance and beautiful messages. So success is on your cards, so work on it. I hope this reading has helped you break through whatever pattern you need to break through. So beautiful energies, all the best. I wish you all success, and definitely you will be successful. Your hard work will be paid, but all you need to take action. All the best. I wish you all the best. A breakthrough is around the corner, so it will be happening. You need to break through your pattern, whatever. Do the right thing. Okay, so definitely आप पॉजिटिव रहो. कामयाबी आपके कदम चूमेगी, आपके मेहनत सफल होगी. मेहनत करो, विक्ट्री आपके कार्ड्स में है. आपको बस वो करने की ज़रूरत है जो आपको करना है. अपने डर निकालो. जो भी आप पैटर्न करते रहे हो रिपीट, वो करना बंद करो. उसके थ्रू आप वो पैटर्न को ब्रेक करो. खुद पर विश्वास करो. अब जो हो गया उसको लेट गो कर दो. अब आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आ रहा है. ओके, अब अपनी एनर्जीज काम डाउन करनी है, अपनी एनर्जीज पे वर्क करना है. हमेशा मेडिटेशन करनी है, थोड़ा अपना शांत स्वभाव लाना है. हो सकता है आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो, बहुत गर्म स्वभाव के हो, आप शांत स्वभाव के नहीं हो, तो थोड़ा शांत रहकर अपनी लाइफ में काम करें और शांत स्वभाव से काम करें. शांति से डिसीजंस लो, सोच समझ के करो, अपनी गलतियों से सीखें. और बट एनीवेज आपकी मेहनत सफल होगी. मेहनत करो, कामयाबी आपके पास आएगी. ओके, बस आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, एंड जस्ट गो थ्रू दैट. ब्रेक द पैटर्न, उस चीज़ के थ्रू निकलना है आपको. ऑलराइट, ये ज़रूरी था. यू हैड टू गो थ्रू दिस. ऑलराइट, बस जो करने की ज़रूरत है वो करो, करते जाओ. हार्ड वर्क एंड पुश थ्रू. ओके, एंड ऑल द बेस्ट. अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, आपको लगा आपके साथ रेजोनेट की, आपको क्लैरिटी मिली, आपको गाइडेंस भी मिली, सो मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें. कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपके साथ कितना रेजोनेट किया, आपको कितनी हेल्प मिली. लाइक बटन प्रेस कर दो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको मैं और आपकी फेवरेट टॉपिक्स पे, जो भी आप टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, मैं लाती रहूँ आपके लिए. ओके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक्स भी बता सकते हैं. मैं और वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी. एंड शेयर योर कमेंट्स, लेट मी नो हाउ मच इट हैज़ हेल्प्ड यू, how much it has resonated with you. And you can hit the like button, subscribe to the channel, and hit the notification bell so that you can be notified about my upcoming videos. Let me know your topics, whatever you want me. If you want me to make videos on some other topics, I will surely do so. And I hope this readings helps you. Let me know. And I'm sure this guidance has helped you, whatever you have gone through and whatever is yet to come your way. So I'm sure you are clear about the things now. So कुछ जो भी हो गया आपको पता है, और जो होने के chances है वो भी आपको पता चल गया. So take care of this and learn your lessons. I wish you all the best. God bless you. Love you.